Welcome everyone. Today we are going to see the topic religion or relationship. आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे, आज का जो विषय है धर्म या संबंध। What do you want? आपको क्या चाहिए? Do you want religion or relationship? क्या आपको धर्म चाहिए या वो संबंध चाहिए? Today the passage which we are going to see आज जो पैसेज हम देखने जा रहे हैं Acts chapter 17. प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय। Before reading this passage, ये अध्याय को पढ़ने के पहले we'll turn to 2 Timothy chapter 3. हम पहले देखेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका तीसरे अध्याय से Why we are going to take this topic? क्यों हम ये आज का ये विषय ले रहे हैं। Because many Christians living right now. क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज छोड़ रहे हैं। No. Many Christians who are living, जो बहुत से मसीह लोग हैं जो जी रहे हैं, they are living means as a Christianity as a religion. वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीहत जो क्रिश्चियनिटी है वो एक धर्म के नाम से वो जी रहे हैं। They are forgetting that it is a relationship with God. वो ये बात को वो भूल रहे हैं कि वो एक संबंध है। Why? Because the Bible is, the prophecies are fulfilling what will happen in the last time. क्योंकि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वचनों में लिखा है कि जो भविष्यवाणियां है वो अंत के समय में पूरी होती। If you see 2 Timothy chapter 3, दूसरा तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय I will read verse 1. This Paul is saying, this know also, that in the last days perilous times shall come. पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। What will be those days? वो कौन से दिन होंगे? Verse 2. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high minded, lovers of pleasure more than lovers of God. क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। If you see verse 5, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. वचन 5 में हम देखते हैं, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। Having a form of godliness, जो परमेश्वर का जो फॉर्म है वो होना, right? But if people are having a form of godliness, अगर लोगों के बीच में अगर वो परमेश्वर का वो फॉर्म होता है, means godliness means here means just outward show, जो बाहरी रूप से वो दिखाते हैं एक मसीहत को, right? They are having a religion. वो धर्म के प्रति रहते हैं। But if you have a daily relationship with fellowship with Jesus Christ, अगर हम प्रतिदिन परमेश्वर के साथ हमारी संगति होती है, you will have the power thereof. तो हमारे साथ में वो सामर्थ होती है। So today's topic, Acts chapter 17. तो आज का जो विषय है प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय से। If you see chapter 17 verse 22 to 34 अगर हम देखते हैं वचन 22 से लेकर तो वचन 34 तक, is what today we are going to cover. कि आज हम ये भाग को देखेंगे। We'll read. I will just read this fast and then we'll read in Hindi and then we'll start. Then Paul stood in the midst of Mars hill and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. For as I passed by, beheld your devotions, I found an altar with this inscription, To the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, declare I unto him, God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelling not in temples made with hands, neither is worshipped with men's hand, as though he need anything, seeing he giveth to all life and breath and all things, and hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed and bounds of their habitation, that they should seek Lord, if haply they might feel after him and find him, though he be not far
from every one of us. For in him we live and move and have our being, as certain also of your own poets have said, for we are also his offsprings. Okay, verse 28. Read verse 20 till 28. तब पौलुस ने अरियोपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। Verse 29 I will read. For as much then as we are the offerings of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold or silver or stone graven by art or man's device. And the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent, because he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by the man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. And when they heard of the resurrection of the dead, some mocked, and others said, we will hear thee again of this matter. So Paul departed from among them. Howbeit certain men clave unto him, and believed, and among the which was Dionysius the Areopagite, and the woman named Damaris, and others with them. अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे, और कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियुनुसियुस जो अरियुपगुस का सदस्य था, और दमरिस नामक एक स्त्री थी, और उनके साथ और भी लोग थे। So we'll pray. Thank you, Heavenly Father, for the reading of your word. I pray that you bless this reading, O Lord. I pray that you give us strength, O Lord, to preach from this text, O Lord. I pray that this message might save some, O Lord. I pray that it might give some clarity, O Lord, what is you are trying to give us, O Lord, the relationship with you. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Okay. So Paul stood on Mars Hill in verse 22. वचन 22 में हम देखते हैं कि जो पौलुस जो है वो अरियुपगुस के बीच में खड़ा हुआ था। What is Mars Hill? ये अरियुपगुस जो है वो क्या है? Where was it? वो कहाँ है? It was in Athens. वो जो है वो एथेंस में है। So what was Athens? तो एथेंस क्या है? See how were Athens people were. जो एथेंस के लोग थे वो कैसे थे? Athens was a center of philosophy and intellect. जो एथेंस जो था वो एक बुद्धिमत्ता और वो फिलोसॉफी का एक स्थान था। Right? Means they were very brilliant men there. और वहां पर जो थे वो सब बुद्धिमान लोग रहते थे। But they were blind. पर वो अंधे थे। Blind to the truth. क्योंकि वो सत्य के प्रति वो अंधे थे। See if you see verse 21. वचन 21 में हम For देखते हैं, all the Athenians and the strangers which were there spent their time in nothing else but either to tell or to hear some new thing. इसलिए कि सब एथेंसवासी और परदेशी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय किसी काम में समय नहीं बिताते थे।
So all they were doing is to find something new. वो जो कुछ भी वो कर रहे थे वो कुछ नया ढूंढने के लिए वो कर रहे थे। Just like the present world today. जिस प्रकार से अभी का जो संसार जिस प्रकार से कर रहा है सेम उसी प्रकार से What they are doing? वो क्या कर रहे हैं? They are trying to find new ways of entertainment. वो जो है वो एक नए रास्तों को वो ढूंढना चाह रहे हैं Trying इंटरटेनमेंट के लिए। new religious activities. जो नए तौर पे जो धार्मिक कृति है उनको वो ढूंढ रहे हैं। But all they are doing is they are lost. पर वो जो कुछ भी वो सब कुछ ढूंढ रहे हैं वो एक खोए हुए हैं। The religious offer many options, जो धर्म है वो बहुत से ऑप्शंस को देते हैं, but they also give many confusion. पर उसके साथ वो जो है वो बहुत से कंफ्यूजन्स को भी देते But हैं। Bible says God is not the author of confusion, वचन कहता है कि जो परमेश्वर है वो कंफ्यूजन का ऑथर नहीं है, but God offers us a gospel which is very simple. परमेश्वर जो है वो हमें सुसमाचार देता है और वो सुसमाचार एकदम सीधे सीधे तरल भाषा में है। So today we are going to see, what do you want? तो आज हम देखेंगे कि आपको क्या चाहिए। Do you want religion or do you want relationship? क्या आपको वो धर्म चाहिए, क्या आपको वो संबंध चाहिए? First thing we'll see. पहली बात को हम देखेंगे। First point I have displayed here. Religion starts with man. धर्म मनुष्य से शुरू होता है। Right. First we'll cover this. Religion starts with man. In this passage, if you see verse 24 and 25, God that made the world and all things therein, seeing that he is the Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands, neither is worship with men's hand, as though he needed anything, seeing he giveth to all life and breath and all things. See, worshipped, neither is worship with men's hand is used. वचन 24 और 25 में हम देखते हैं, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। Religion is a man's attempt to go to God. जो धर्म जो है वो एक मनुष्य का वो प्रयत्न है परमेश्वर के पास जाने का, You can see to climb to God. जो परमेश्वर के पास चढ़ने का। But man cannot climb that height. परंतु मनुष्य जो है वो उस ऊंचाई पर वो नहीं चढ़ Do you know सकता। why? Because he is fallen. क्योंकि वो गिर जाता है, He is filthy. वो जो है वो फिल्दी है, Right? He is condemned. वो जो है वो निंदादायक Means है। if you see Romans chapter 3 and Rom- verse 23, रोमियो 3:22 में हम देखते हैं, what does the Bible say? Romans 3:23. See, all have sinned. सभी ने पाप किया। If you see Romans chapter, where I say 3:23. For all have sinned and come short for the glory of God. इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। What religious people are doing nowadays? जो धार्मिक लोग हैं वो आज के दिन में क्या कर रहे हैं? Not nowadays, from the past. जो पहले से ही वो लोग क्या करते आ रहे हैं? They are building temples. वो जो है वो मंदिरों का निर्माण करते They आ are रहे हैं। building altars. वो वेदियों का बनाते हैं। They are doing rituals. जो है वो रूढ़ी परंपराओं को वो फॉलो कर रहे हैं। That's why today you have all mosques. जो आज इसीलिए जो आज ये जो मॉस्क है वो इसलिए है। We have cathedrals, big वो- cathedrals. ये जो कैथेड्रल्स, ये जो बड़े बड़े मंदिर से ये You इसीलिए है। have big idols. जो बड़े बड़े आइडल्स है वो भी इसीलिए है। But all temples are made with man's hand. जो सभी जो मंदिर है वो मनुष्य के हाथों से बनाए गए हैं। This is the one of the religion is controlled by the Satan. ये जो है ये धर्म जो है वो एक शैतान के द्वारा वो चलाया जा रहा था। He is using his old trick. वो जो है वो उसकी पुरानी वो ट्रिक को वो यहाँ वहां पर उसका उपयोग कर रहा Do you है। know what he told to Eve? उसने हवा से क्या कहा Ye shall be gods. कि ये परमेश्वर होंगे, If you eat this fruit, ye shall be God. Like कि gods. आप अगर उस फल को खाओगे तो आप परमेश्वर के समान होंगे। The first religion in the Bible was Babel. जो पहला जो धर्म बाइबल वचन में लिखा है वो बाबेल है। Hey, what they were doing, trying to build something, वो क्या कर रहे थे कि वो कुछ तो भी उसको किसी का निर्माण करना वो चाह रहे थे। build a tower,
कि वो टावर को बना रहे थे, tower that will reach heaven. कि वो टावर को बना रहे थे कि वो स्वर्ग तक पहुंचेगा। In Genesis chapter 11 verse 4 says that they were trying to build a tower, trying to reach to heaven. उत्पत्ति 11 और उसके 4 में लिखा है कि वो टावर को बना रहे थे कि वो स्वर्ग तक पहुंचेंगे। But what God did? परंतु परमेश्वर ने क्या किया? God destroyed it. परमेश्वर ने उसका नाश कर दिया। He confused them with languages. परमेश्वर ने उनको कंफ्यूज किया उन भाषाओं के द्वारा। So from the start, man is trying his best to go to heaven. तो पहले से ही हम देखते हैं कि मनुष्य उसका पूरा प्रयास करता है कि वो स्वर्ग में जाने के But the लिए। problem is man's hands are dirty. परंतु समस्या क्या है कि जो मनुष्य के जो हाथ है वो डर्टी है, They are sinful. वो जो है वो पापमय है। The problem of sin is stopping them to go to heaven. जो पाप की जो समस्या है वो उन्हें रोकती है स्वर्ग जाने के लिए। Right? But today there are many people who are using the religion as a means to go to heaven. आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो धर्म का उपयोग करते हैं स्वर्ग जाने के लिए। They are doing their best to do all things. वो उनके सभी भलो कामों को वो करते हैं, But in spite of all their best efforts, परंतु उनके पूरे प्रयास के बाद भी the heaven is wide open to them. Hell is wide open to them. परंतु नर्क जो है वो उनके लिए पूरी तौर पे खोला है। So religion starts with a man, जो धर्म है वो मनुष्य से शुरू होता है, right? But relationship परंतु जो संबंध है starts with God. वो परमेश्वर से शुरू होता है। Second point we will see, right? If you see verse 24, God hath made the world and all things therein. जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, Right? He doesn't dwell in temples made with hands. वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। Right? God made the world, He gave the life, and He created all things. परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, परमेश्वर ने उस ज्योति को दी और परमेश्वर ने सब कुछ बातों की रचना की। God was not waiting that people will come to Him. परमेश्वर उस बात की वो राह नहीं देख रहा था कि लोग मेरे पास आएंगे, But God came Himself down. परंतु परमेश्वर खुद होकर वो नीचे आया। If you see John chapter 3 verse 13. John 3:13. यूहन्ना 3 और उसके 13 में हम देखते हैं, John 3:13. But no man hath ascended up to heaven. Clearly Bible says. कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, But he came down. But he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। God came down. परमेश्वर नीचे आया। If you see verse 16, 3:16, John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth him should not perish but have everlasting life. यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। God loved the world that he came down. परमेश्वर ने इस जगत से इस प्रकार प्रेम किया कि वो खुद नीचे आया। If you see 1 Timothy chapter 3:16, पहला तिमोथी 3 और 16 में हम देखते हैं, 3:16, without controversy, 3:16, 1 Timothy, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in flesh, justified in the spirit, seen of the angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up in glory. 3:16, 1 Timothy. yes. God was manifest in flesh, the Bible says. इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। So Jesus Christ is God who was manifest in flesh. प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो वो शरीरधारी रूप में नीचे आया। He lived a sinless life. उसने एक पवित्र जीवन जिया He died sacrificially. और उसने वो सैक्रिफाइस के रूप में उसने वो मृत्यु को सह लिया And he rose victoriously. और वो विजयी हुआ। So salvation doesn't start with you. जो उद्धार है वो हमसे शुरुआत उसकी नहीं होती है। Salvation starts with God. जो उद्धार है उसकी शुरुआत परमेश्वर के द्वारा होती है। We love him. We love him हमने उससे प्रेम किया because he first loved us. क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। That is what 1 John 4:19 says. पहला यूहन्ना उसका 4:19 में कहा गया है। So in simple words, religion says do.
सीधी भाषा में हम बोलेंगे तो धर्म क्या कहता है कि आप कीजिए, right? Do. आप खुद कीजिए। But what the Christ says, परंतु मसीह क्या कहता है done. कि हो गया, पूरा It हुआ, is done. On the cross it is said, it is finished. कि वो क्रूस पर वो पूरा हुआ। So next point we'll see, in religion you make sacrifices to God. दूसरी बात को हम देखेंगे कि धर्म में तुम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हो। If you see Acts chapter 17 verse 23, what they were doing, Athens built an altar. क्योंकि 23, for as when Paul was passing by, for as I passed by, beheld your devotions, I found an altar with an inscription, to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship. See, they were very, intellectual people. What they were doing, ignorantly worship, declare I unto you. क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। What was their God? उनका परमेश्वर कौन था? Unknown God. अनजाना परमेश्वर था। That is what the inscription was written. कि यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है कि अनजाना परमेश्वर, अनजाना ईश्वर। See, today also people are doing the same thing. आज भी जो है लोग वो उसी प्रकार से कर रहे हैं। They don't know who they are worshiping. उन्हें ये पता नहीं है कि वो किसकी उपासना कर रहे हैं। If you see here, the Athens built an altar. हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एथेंस लोगों ने वहां पर वो उस वेदी को बनाया। You know, in Genesis, Cain offered fruits. जो हमने जेनेसिस में देखा कि जो केन ने वो जो शैतान ने उस फल को ऑफर किया। Cain, yeah. केन ने, हाँ, he offered the first fruits, right? Saying that I have done my work, you should accept my fruits as a sacrifice. हाँ, कि उसने वो त्याग के तौर पर वो अपनी पहली उपज को, उस फल को परमेश्वर के प्रति लाया। What I am saying, in religion, people are making sacrifices to God. जो धर्म में है, धर्म में लोग जो है वो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं। So in Israel also made sacrifices by making golden calf. जो इजराइल में भी हम देखते कि वो गोल्डन वो काफ के द्वारा वो हमारा अपना बलिदान चढ़ाते थे। Do you know what Catholics do now? जो कैथलिक लोग आज क्या करते हैं, क्या आपको पता है? They burn candles. वो जो है वो मेणबत्ती को वो जलाते हैं। Do you know what Hindus do? जो हिंदुइज्म में क्या करते हैं, क्या आपको They पता break है? coconuts. वो नारल को फोड़ते हैं, नारल को In अर्पण करते Muslims do, हैं। मुस्लिम्स में क्या करते they हैं? slaughter animals. जो वो एनिमल्स को वो बलिदान करते हैं। What they are doing? वो क्या कर रहे हैं? They are making sacrifices to God. वो परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहे हैं। But do you know what God says about this? परंतु परमेश्वर ने उसके बारे में क्या कहा, क्या If you आपको open पता है? Isaiah chapter 1, God doesn't like this sacrifices, that you making sacrifice to God. Like these sacrifices. If you see Isaiah chapter 1 and verse 11. Chapter 1 verse 11. Was यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेलबलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। clearly God says, to what purpose is the multitude of your sacrifice unto me? यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेलबलि मेरे किस काम के लिए है? Right? I am full of burnt offerings of ram and am fat of the fed beast. I delight not in the blood of bullocks or of lambs or of he goats. मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। God is telling, don't bring me this. परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि ये सब बलिदान मेरे पास मत लाइए। But what the devil is trying to do nowadays, परंतु शैतान आज के दिनों में क्या कर रहा है? especially in India, स्पेशली इस भारत देश में people are stuck with religion. लोग जो है वो इस धर्म में फंसे हुए हैं। They are trying their best to do their religion. वो उनके धर्म के प्रति वो एक बहुत भले काम को करने को वो चाह रहे हैं। They are good people, वो अच्छे लोग हैं, but they don't know the truth. परंतु वो सत्य को नहीं जानते। But we as a Christians परंतु हम जो मसीह लोग हैं are also silent now. हम भी जो है हम शांत है। They are not also telling the gospel. हम भी जो है उस सुसमाचार को हम वो नहीं That बांट रहे God हैं। want to have relationship with you.
परमेश्वर जो है वो हमारे साथ उस संबंध को प्रस्थापित करना चाहता है। What religion is doing is only offering sacrifices, परंतु धर्म क्या कर रहा है? तो धर्म में हम परमेश्वर के लिए उस बलिदान को चढ़ा रहे हैं, which God never asked. परंतु परमेश्वर ने उसे कभी मांगा ही नहीं। Right? So God doesn't want your sacrifices. परमेश्वर हमारे उस बलिदानों को नहीं चाह रहा है, What God wants? परंतु परमेश्वर क्या चाहता He है? wants obedience. परमेश्वर चाहता है उस ओबीडियंस को, He wants your heart. वो अब हमारे हृदय को चाहता है। So in relationship, उस संबंध में God made sacrifice for you. परमेश्वर ने हमारे लिए उस बलिदान को दिया। If you see Acts chapter 17 verse 31, our passage. Acts 17:31. Because he hath appointed a day in which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained. Who is that man? Jesus Christ, right? Whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। वो न्याय कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह, जिसने उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। Jesus offered himself as a sacrifice. प्रभु यीशु मसीह ने खुद को उस बलिदान के प्रति दिया है। If you see Hebrews chapter 10, इब्रानियों उसके 10वें अध्याय में हम देखते हैं 10:10. 10 और 10 में, By the which will we are sanctified. How? Through the offering of the body of Jesus Christ once for all. इब्रानियों 10:10, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। Verse 11. वचन And 11, every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins. हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। Verse 12. But this man, the Jesus Christ, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। If you see 1 Peter chapter 3:18, पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और 18वें वचन में हम देखते हैं, unless you don't open the scriptures, जब तक हम वचनों को नहीं खोलेंगे, you will not understand the simplicity which God is trying to offer. जो परमेश्वर जो सीधे तौर पर हमसे कम कहना चाहता है वो हम नहीं समझ पाएंगे। 1 Peter 3:18. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। The just for the unjust. जो जस्ट न्यायी for पापियों की, for the just for the unjust. जो वो न्यायी था अन्यायियों के लिए। Right? He sacrificed himself. उसने खुद को बलिदान के तौर पे दिया। At the Calvary, he cried, "It is finished." वो कैलवरी पर उसने कहा कि ये पूरा हुआ। He paid the debt. उसने जो है उस गहराई को उसने पेड़ किया He bore the wrath of God on him. और उसने जो परमेश्वर का जो क्रोध है वो खुद के ऊपर लिया He opened the way for us. और उसने हमारे लिए उस मार्गों को खोला। So what religion is doing? They are building altars. जो धर्म क्या कर रहा है? तो वो उन वेदियों को बना रहा है। They are climbing altars. वो जो है वो उस वेदियों पर वो चढ़ रहे हैं। But Jesus climbed the cross. परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर चढ़ा। Jesus made sacrifice for you. पर प्रभु यीशु मसीह ने उस बलिदान को हमारे लिए दिया In order to have relationship with you. कि वो इसलिए दिया है कि हम हमारे साथ वो संबंध को प्रस्थापित करने पाए। If you see, so what we have seen? तो क्या हमने क्या देखा? So religion starts with man. जो धर्म जो है वो मनुष्य से शुरू होता है। Relationship starts with God. जो संबंध है वो परमेश्वर से शुरू होता है। And in religion, you make sacrifice to God. धर्म में हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं In relation, God made sacrifice for you. और संबंध में परमेश्वर तुम्हारे लिए बलिदान देता है। We'll see, in religion, you do to save yourselves. धर्म में तुम अपने आप को बचाने के लिए काम करते हो, But in relationship, God did to save you. परंतु संबंध में परमेश्वर ने तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ कर दिया। So in religion, you are doing means what they call in works. धर्म में हम जो कर रहे हैं जो काम, They are doing their daily devotions.
कि वो उनका प्रतिदिन का काम वो कर रहे हैं, means they are sacraments, they are following the rituals. जो है उनकी वो रूढ़ी और वो परंपराओं को वो फॉलो कर रहे हैं। They will go, means they travel very far just to meet God. वो बहुत दूर का वो प्रयास वो कर रहे हैं कि वो परमेश्वर से मिलने पाए। Means what do you say? They travel, what they say, they worry वगैरह क्या होता हाँ हाँ, वो वारियों और वो परमेश्वर को मिलने के लिए उस दूर का वो है? They go to temple, हाँ, they go to here in India, they travel yatra, there is there. वो यात्राओं को और वो परमेश्वर को मिलने के लिए काफी दूर वो अंतर को वो जा रहे हैं, They walk barefooted. और वो जो है वो बिना चप्पल के वो खाली पैर वो ऐसे चल रहे हैं। What they are doing? और वो क्या कर रहे हैं They are trying to earn favor with God. कि वो परमेश्वर का फेवर वो पाना चाह रहे हैं। That telling God, God, look, I walked this many steps, I reversed walked. They say. वो परमेश्वर को ये बात को बता रहे हैं कि देख परमेश्वर, मैंने वो बिना जूते के इतने अंतर मैंने चला है। They have a zeal in them और उनके अंदर वो झील को हम देखते हैं to maintain their religion. कि वो अपने धर्म को वो मेंटेन करने के लिए। There are different religions, और बहुत से ऐसे धर्म हैं, but the same system. परंतु उन सब में जो है वो सेम सिस्टम है। Do this, ये करो, keep this, ये रखो, follow these rules. ये रूल्स को फॉलो करो। They are always working. वो हमेशा वो काम में लगे रहते They हैं are never resting. और वो कभी भी आराम नहीं करते हैं। They are doing all those pujas and all. They do very well. और वो उनकी जो भी रूढ़ी परंपरा है उनको वो अच्छी रीति से कर रहे हैं। Always hoping that when they die, that God will accept them. उनकी एक ही आशा है कि जब वो मर जाएंगे तो परमेश्वर उन्हें ग्रहण करेगा। But they are never sure about it. परंतु वो इसके प्रति निश्चिंत नहीं है। If you ask someone, are you sure that when you will die today, that you will go to heaven? अगर they will tell, no, I'm not sure. अगर हम किसी को पूछते हैं और उन्हें पूछते हैं कि आज आप मर जाओगे तो क्या आप स्वर्ग जाओगे, तो वो निश्चिंत नहीं होते हैं। Right, but Bible offers the assurance. परंतु वचन जो है वो निश्चितता को देता है। Man is trying his best जो मनुष्य है उसका पूरा प्रयास कर रहा है to save himself कि वो खुद को बचाने पाए। with an rotten rope. वो रस्सी से बचाने के लिए वो खुद प्रयास कर रहा है। They are holding that rotten rope वो जो है वो उस रस्सी को वो पकड़े है and that rope breaks. और वो जो रस्सी है वो टूट जाती है। Every time that rope breaks. वो हर समय जो है वो रस्सी टूटती है। What is that rope? और वो रस्सी क्या है? The good works. और वो जो है वो हमारे भले काम है। Just now we have read, all have sinned. जो हमने अभी पढ़ा कि सभी ने पाप किया। And the next in John said, we have read, no man hath ascended to heaven. और हमने देखा कि कोई भी मनुष्य जो है वो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा है। So in religion they do their works to save themselves. जो धर्म में है वो लोग भले कामों को इसलिए करते हैं कि वो अपने आप को बचाने पाए। But thank be God that He has given us relationship. परंतु हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उस संबंध को हमें दिया। And in relationship, और उस संबंध में God did something to save you. परमेश्वर ने कुछ तो किया हमें बचाने के लिए। Right? He died for us. कि वो हमारे लिए मारा गया। He was buried. और वो गाड़ा गया। And He rose again from the third day. और वो तीसरे दिन जी उठा। Certain men believe today. और बहुत से लोग हैं जो वो विश्वास करते हैं। They believe in rituals. वो जो है वो रूढ़ी और परंपराओं पर विश्वास करते हैं। They do their rosaries. और वो जो है वो उनके रोजरीज वो करते हैं। They do all their ceremonies. और वो जो है उनके जो सारे जो सेरेमनीज है वो उनको करते हैं। Thinking that if we keep all these things. वो ये सोचते हैं कि अगर हम इन सब बातों को करेंगे, If we follow all these rules. अगर हम ये इन सब बातों को हम करते जाएंगे, One day God will accept us. तो एक दिन परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा। But the Bible says, परंतु वचन कहता है just by faith in Christ, सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखने के द्वारा you are in heaven. आप स्वर्ग में होगे। In Ephesians 2:8 says, salvation is by grace through faith. और इफिसियों 2 और उसके 8 में हम देखते हैं कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, Not of works. और वो भले कामों के द्वारा नहीं। If you see Hebrews chapter 10 verse 14, इब्रानियों 10 और उसके 14 में हम देखते you हैं understand that Christ did everything for us. प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ किया। Hebrews 10:14. I will read. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified.
इब्रानियों 10 और 14 में हम देखते हैं, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। So you should quit trusting what you do अगर हम जो कुछ भी हम कर रहे हैं उस पर विश्वास करना छोड़ दे and start trusting what Christ did for you. और हम इस बात पर विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। So in relationship, God saved us by offering Himself on the cross of Calvary. तो संबंध में जो है परमेश्वर ने हमें बचाया है, खुद को देकर उस क्रूस पर उसने खुद को दिया He sacrificed His own precious blood. और उसने अपने खुद के उस रक्त को, उस लहू को उसने बलिदान के रूप पर चढ़ाया। Yes. So next thing we'll see. In religion, you strive to be accepted. धर्म में तुम स्वीकार किए जाने के लिए प्रयत्न करते हो। If you see Acts chapter 17 verse 22. प्रेरितों के काम 17 और 22 में हम देखते हैं, Then Paul stood in the midst of Mars hills and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। Athens were so superstitious, जो एथेंस के लोग जो थे वो बहुत बुद्धिमान थे they even built an altar and named that altar to the unknown God. और उन्होंने एक वेदी बनाई और वेदी पर वो लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। So religion will always leave you guessing. जो धर्म जो है वो हमेशा आपको उस वो गेसिंग्स में वो डालता है। Guessing means what? What is the Hindi word for guessing? Guessing, It's only guess thinking करने- एक that God will one day accept me. अनुमान मनुष्य Right? वो- thinking that God will one day accept me. वो इस बात में लगे रहते, इस सोच में लगे रहते कि एक दिन परमेश्वर मुझे ग्रहण करेगा। They think I hope that what I have done is enough. कि वो सोचते हैं कि वो इस बात में धन्य रहते कि मैंने जो कुछ किया वो सब ठीक किया। Do you know what Bible says? Romans 3:12. Romans 3. रोमियो 3:12 में वचन क्या कहता है? They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that do it good, no, not one. सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कि कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। There is no, not one who does good. यह कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो भलाई करने वाला हो। So when you are, if you are following your own religion, अगर हम हमारे खुद के धर्म को हम अगर उसके प्रति चल रहे हैं and if you are on your deathbed, और अगर हम हमारी मृत्यु के उस बिछोने पर है, right, and the last thing you will think that I hope that God will accept me. आखिरी बात को हम सोच रहे हैं कि वो परमेश्वर मुझे ग्रहण करेगा। But if you have accepted Jesus Christ, परंतु अगर हमने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया है and Christ will give you peace on your deathbed, तो प्रभु यीशु मसीह उस आपके उस मृत्यु के बिछोने पर आपको वो शांति देगा and He will tell you, you will know that you will go to heaven और आपको ये पता होगा कि आप निश्चिंत ही स्वर्ग में जाओगे, because you are accepted in the beloved. The Bible says क्योंकि आप उस बिलोड में आप एक्सेप्ट आपका स्वीकार हो चुका है। you are accepted in the Son Jesus Christ. आप प्रभु यीशु मसीह पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वीकार हो चुका है। Right. So in the relationship, तो उस संबंध में you are already accepted. आप जो है पहले से आपका स्वीकार किया But गया in है religion, you strive to be accepted. और धर्म में हम स्वीकार होने के लिए प्रयास करते हैं। Bible says He hath given us assurance unto all men. वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें हर बात में वो निश्चितता को दिया है। Assurance that you will never lose your salvation. उस बात की निश्चितता हमें है कि हम हमारे उद्धार को कभी खो नहीं पाते, You are accepted in Jesus कि Christ. हम प्रभु यीशु मसीह में हमारा ग्रहण हो चुका है। You will not think that God will accept me or not. हम ये इस बात को नहीं सोचेंगे कि परमेश्वर मुझे ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा। Once you trust Him, एक बार जब हम उस पर विश्वास करते हैं no one can separate you. तो कोई भी नहीं जो आपको अलग कर सकता है। See, when we as a Christians, there will be the tendency that you will again wind up in sin. जब हम मसीह लोग हैं हमें एक आदत होती है कि हम फिर से उस पापों में धंस जाते हैं If you not walk in the Spirit, अगर हम आत्मा में नहीं चलते तो। and the devil will try to think you, और शैतान पूरा विचार करता है, try to think into you that God doesn't love you, शैतान उस विचार को हमें डालता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, that God is not near you. कि परमेश्वर आपके पास नहीं है।
right? But do you know what the Bible says? परंतु वचन क्या कहता है? In Romans chapter 8. रोमियो Romans उसका chapter 8वां 8 अध्याय, is one of the greatest chapter in the Bible. जो रोमियो का उसका 8वां अध्याय वो एक महान अध्याय है बाइबल में। You will understand why it is. If you see Romans chapter 8 verse 38, what Paul says, for I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, neither height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. रोमियो 8 और उसके 38 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। That is what your eternal security. ये जो है ये हमारी सार्वकालिक जो है वो रक्षा है। Right? You will never lose your salvation, even if you sin. अगर आप पाप भी करते हो फिर भी आप आपके उद्धार को नहीं खो सकते। Right? But that doesn't mean that you have license to sin. तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको पाप करने का अधिकार है, License. लाइसेंस है Right? So you can do anything because the grace abounds. कि आप कुछ भी कर सकते हो और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। You will lose many things, आप जो है बहुत सी बातों को खो भी सकते हैं, but you will never lose your citizenship in heaven. परंतु आप जो आपका जो सिटीजनशिप है स्वर्ग में उसे नहीं खो सकते। What you will lose, it will be dealt. Your rewards, your inheritance. We'll be taking another topic which is called judgment seat of Christ. You'll understand that. आप क्या खोगे तो आपका वो Rewards. रिवॉर्ड्स, आपके जो रिवॉर्ड्स है, आपके जो हेल्थ है उसे हम खो सकते हैं। Right. There are many things you can lose. Testimony. ऐसे बहुत सी बातें हैं जो हम खो सकते हैं, जो गवाही है उसे हम खो सकते हैं। If you think that I am now, I know that I go to heaven. अगर हम इस बात ऐसा सोचते हैं कि मुझे पता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, Means when you accept Jesus Christ as your personal savior, जब हम प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, definitely you will go to heaven. निश्चिंत ही आप स्वर्ग जाओगे। But the परंतु moment you start thinking that I will not change my life, कि जिस समय आप ये सोचते हो कि मैं मेरे जीवन को नहीं बदलूंगा, I will not leave my sins, कि मैं मेरे पापों को नहीं छोड़ूंगा, what God can do? तो परमेश्वर क्या कर सकता है? God can take away your health. परमेश्वर आपके आरोग्य को ले सकता है। He has given you, means He has freed your soul from bondage of sin. तो परमेश्वर ने जो है आपके आत्मा को उस जीव वो को, soul, जो जीव को जो है वो प्राण को जो है वो उस पापों से निकाला है। right? But you should be thankful to God. But instead, you are continuing in the flesh. हम परमेश्वर के प्रति धन्यवाद देते हैं और फिर भी अगर हम उस पापों को करते आते हैं So what will happen? He will take away your health. तो परमेश्वर क्या करेगा? वो आपके आरोग्य को लेगा, He will take away your testimony. जो आपकी गवाही को लेगा। There are a lot of things that He will take away. ऐसी बहुत सी बातें जो उससे वो ले लेगा, But He will not take away your entrance in heaven. परंतु वो आपका जो स्वर्ग के प्रति स्वर्ग में जो आपका एंट्रेंस है उसे वो नहीं लेगा, Because He has promised eternal life. क्योंकि उसने जो है वो सार्वकालिक जीवन के लिए उसने वो वायदा किया है। For God means God never takes His promise back. जो परमेश्वर जो है उसके वायदे को कभी भी वापस नहीं लेता है। What was that promise? John 3:16. और वो वायदा क्या है? तो यूहन्ना 3:16, Whosoever believeth on Him जो कोई should भी उस not पर perish, जो कोई भी उस पर विश्वास रखता है उसका नाश ना हो, but has everlasting life. परंतु उसके पास सार्वकालिक जीवन That is हो। the promise of God. और ये जो है ये परमेश्वर का वायदा है। Even here also, just now we read in Romans chapter 8, nothing can separate you from the love of God. रोमियो 8 और उसके 38 में हमने देखा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जो परमेश्वर के प्रेम से मुझे अलग कर सकती है। You don't work for acceptance. हम जो है स्वीकार करने के लिए उस कामों को नहीं कर रहे हैं, You work because of for your acceptance. Means after you have saved, you should do good works आपके बचाए जाने के बाद आप वो भले कामों को कर रहे हैं, because you are accepted already. क्योंकि आप पर पहले ही से आपका स्वीकार हो चुका है। But in religion, परंतु धर्म में it's completely opposite. वो उसके विरुद्ध में है। People do good works लोग भले कामों को करते so हैं that God will accept them. कि परमेश्वर उन्हें उनका स्वीकार करे। So, but if you are saved today, अगर आज आप बचाए गए हो quit acting like religious people. तो हम धर्म में रहने वाले लोगों के समान बर्ताव करना छोड़ दे। Nowadays, Christians have forgotten that they have relationship with God. आज के दिनों में जो मसीह लोग हैं वो भूल चुके हैं कि उनका संबंध परमेश्वर के साथ है। You should be very joyful. और आप जो है हमेशा एक वो जॉयफुल आपको होना चाहिए। Paul says that I press toward the high calling
जो पौल कहता है कि मैं उस प्रभुता वो प्रधानता को calling of God. उसको मैं आवाज देता हूँ Right? I means I am going towards Him कि वह मैं उसके पास जाता हूँ and forgetting all things. और मैं बाकी की सब बातों को भूल जाता हूँ। Right? If you are saved today, अगर आप बचाए गए हो आज understand that you are a son of God, और हम ये समझ गए कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, but you are not a slave of God. परंतु हम Slave, गुलाम नहीं हो। हाँ परंतु हम उसके गुलाम नहीं हैं। Right? You are a son of God. हम जो है उसके पुत्र हैं। Right? In परमेश्वर के John, पुत्र when we are studying verse by verse John, we have studied that we are the sons of God. But who are the sons of God? Those only who accept Him, those only who receive Him. यूहन्ना में हमने देखा कि हम उसके पुत्र हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। और परमेश्वर के पुत्र कौन है? जो उस पर विश्वास रखते हैं। So in religion there are many ways. जो धर्म में है, धर्म में हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से रास्ते हैं। They are trying their best to go to heaven. उनका पूरा प्रयास करते हैं कि वो स्वर्ग जाने पाए। They have many gods. उनके पास बहुत से परमेश्वर है There are many lies. और उनके पास बहुत सी ऐसी झूठी बातें हैं। But in relationship, परंतु संबंध में we have one blood. हमारे पास एक ही लहू है। If you see Acts 17:26, one blood. प्रेरितों 17 में हम देखते हैं कि एक ही लहू है। One blood. In 17:27 you see one Lord. हम 17 और 27 में हम देखते हैं कि एक ही परमेश्वर है। And if you see 17:31, one Savior. 17 और 31. 31 में हम देखते हैं कि एक ही बचाने वाला है। There is one Savior who can save you. एक ही बचाने वाला है। One blood, one Lord, one Savior. एक ही लहू है, एक ही परमेश्वर है और एक ही बचाने वाला है। Jesus, you know what Jesus said? That's why many people hate Jesus. क्या आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? He spake with authority. और उसने जो है उस वो अथॉरिटी के साथ उस बात को John कहा। 14:6 he said, I am the way, यूहन्ना 14 और 7 में उसने कहा कि मैं मार्ग हूँ, I am the truth, मैं सत्य हूँ the life. और जीवन। No man cometh unto the Father but और by me. कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं जाता है मेरे बगैर। So if you are lost, अगर आप खोए हुए हैं, if you are in religion, अगर आप धर्म में हैं, believe on the Lord Jesus Christ, तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें and thou shalt be saved. और आप आज बचाए जाओगे। If you are saved, अगर आप बचाए गए हैं stop living like a Pharisee. तो उस फरीसियों के समान जीना बंद करें। What you should do as a Christian? तो हमें मसीह के तौर पर हमें क्या करना You चाहिए? should grow in Christ. तो हमें प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना You चाहिए, should love Him. उससे प्रेम करना You चाहिए, should walk with Him. उसके साथ चलना चाहिए। So this is all we have seen today. तो आज इन सब बातों को हमने देखा। So in short, the table we can summarize all these things. तो ये जो टेबल है इसमें हमने उस समराइज हम उसे करेंगे Why we are taking this? कि ये क्यों हम ले रहे हैं। Because it is good to remind ourselves that we are in a relationship. ये हमारे लिए ये एक अच्छा होगा कि हम उस बात को रिमाइंड करें कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ है। We are in the midst of this crooked world. और इस संसार के बीच में जब हम है We should declare, stand boldly. तो हम बोल्डली उसे घोषित करने पाए। So in short, man's religion means man's way. Religion is a man's way and relationship is a God's way. जो धर्म जो है वो मनुष्य का रास्ता है और जो संबंध है वो परमेश्वर के रास्ता है। When you have time, you check all these references. जब आपके पास समय होगा तब आप इस सारे रेफरेंस को देखिए। It will bring you much light through the scriptures. तो ये जो है ये आपको और प्रकाशन देगा। So religion starts with man, relationship starts with God. जो धर्म जो है वो मनुष्य के द्वारा शुरुआत होता है और जो संबंध है वो परमेश्वर के द्वारा उसकी शुरुआत होती Here men are trying to reach to God, but there God came down to us. है। धर्म में जो है वो मनुष्य प्रयास करता है परमेश्वर के पास जाने का, परंतु संबंध में परमेश्वर मनुष्य के पास आता है। Here people make sacrifices, या और जब धर्म में हम देखते हैं कि लोग उस सैक्रिफाइसेस करते हैं, but there God came down, Jesus Christ, for that one sacrifice. परंतु संबंध में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे प्रति उस बलिदान को दिया है जो प्रभु यीशु मसीह के The द्वारा। religion says do something to be saved. जो धर्म है, धर्म में कहते हैं कि आपको कुछ अच्छा करना चाहिए बचाए जाने के लिए। Rituals, sacraments, all they do, good works. जो रूढ़ी परंपराएं और भले काम है, But there it is finished. Jesus said on the cross, He died for, He did all everything for us. परंतु संबंध में हम देखते हैं कि वो पूरा हुआ, पर प्रभु यीशु मसीह ने पूरा सब कुछ पूरा किया। The religions leave you thinking that you are means accepted. जो धर्म में हम देखते हैं कि वो लोग जो है वो सोचते हैं कि वो स्वीकार होने के बारे में, Right? They are striving their best to be accepted. वो उनका पूरा प्रयास करते हैं कि वो उनका स्वीकार होने पाए। But there
Bible declares if you trust him, you are already accepted in Christ. परंतु संबंध में वो घोषित किया जाता है कि आप पहले से ही प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वीकार हो चुका है। Religion will produce fear, doubt, and uncertainty. जो धर्म है, धर्म जो हमारे अंदर उस भीति को, उस निराशा को और उस डाउट को वो पैदा करता है। But what will relationship will do? It परंतु will produce संबंध assurance, peace, and confidence. परंतु संबंध क्या करता है? तो संबंध उस निश्चितता को, उस शांति को और उस वो आत्मविश्वास को देता है। Many ways, many gods, and many lies. धर्म में जो है बहुत से रास्ते हैं, बहुत से परमेश्वर है और बहुत से झूठी बातें हैं। But we have seen one way means one blood, one savior, and one truth. परंतु संबंध में हमने देखा कि एक ही रास्ता है, एक ही बचाने वाला है और एक ही सत्य है। These people end in hell. और ये जो लोग हैं वो उनका जो अंत है वो नरक में होगा। Relationship will end you in heaven. परंतु जो परमेश्वर के साथ का जो संबंध है उसका जो एंड है वो स्वर्ग में होगा। So what do you want? तो आपको क्या चाहिए? Do you want religion क्या आपको धर्म चाहिए or do you want relationship? और क्या आपको उस संबंध चाहिए? If you accepted him as your personal savior, अगर आप उसे ग्रहण करते हो आपके व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में, you have started a new life. तो आपने एक नई शुरुआत, नया जीवन शुरू किया है। Say to God, Lord, that I am a sinner. परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मैं एक पापी हूँ, I accept your sacrifice, मैं आपके बलिदान को स्वीकार करता हूँ that he died for my sins, कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, that he was buried, कि वो मेरे पापों के लिए वो गाड़ा गया and he rose again from the third day. और वो तीसरे दिन फिर से जी उठा। Lord, I am willing और परमेश्वर मैं तैयार हूँ, to accept you as my personal savior. मैं तैयार हूँ कि आपका स्वीकार करूँ मेरे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के The रूप में। moment you accept him, जिस समय में आप उस पर विश्वास करते हो, you enter into a relationship with God. तो आप उस परमेश्वर के साथ जो वो संबंध है उसमें आपका प्रवेश होता है, As a father to his child, जो जिस प्रकार से उस पिता से पुत्र की ओर। right? Then daily you should have fellowship with him, तो प्रतिदिन आप उसके साथ संगति करने पाए, right? He'll never kick you out of his home. तो परमेश्वर जो है वो कभी भी आपको अपने घर से बाहर नहीं करेगा। You may fall at home, आप घर में गिर सकते हो, right? But your relationship will never break, परंतु आपका जो संबंध है वो कभी भी नहीं टूटेगा। right? There is one illustration that we as a saved people, एक ऐसी समझ है कि जो बचाए गए लोग हैं, समझ नहीं, the illustration means one Yeah. example I want to give, एक उदाहरण है कि जो लोग बचाए गए हैं, that we saved people are in a plane. जो बचाए गए लोग हैं वो एक विमान में है। We may fall in the plane, वो जो है वो हम गिर सकते हैं, no, in the plane, जो विमान के अंदर हम गिर सकते हैं, but never fall out of the plane, परंतु उस विमान के बाहर हम कभी नहीं गिर सकते। right? So God will never throw you out of his relationship. जो परमेश्वर जो उसके संबंध के बाहर हमें कभी भी नहीं फेंकेगा। Even we are unfaithful, जब हम अनफेथफुल हैं तो भी, yet he abideth faithful, the Bible says. परंतु फिर भी वो हमें थामे रहेगा। So choose relationship. सो हमें संबंध को चुनना चाहिए। Try to maintain daily relationship, means fellowship with Jesus Christ. हमें इसका प्रयास करना चाहिए कि प्रतिदिन हम उसके साथ संगति को करने पाए। One of the most top priority for a Christian, सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी मसीह लोग के लिए होनी चाहिए, to maintain daily fellowship with Jesus Christ. तो प्रतिदिन परमेश्वर के साथ उस संगति को करें। You should confess your sins. तो हमारे पापों को हम अंगीकार You करें, should come before him. तो हम उसके पास आए। Bible says if we confess your sins, he will forgive us from all our iniquities. वचन कहता है कि अगर हम हमारे पापों का अंगीकार करते हैं तो हर एक बातों में वो हमारी छुड़ौती करता है। Nowadays Christian thinks that God is not near me, आज के दिन में मसीह लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे पास नहीं है, but they forget that they have unconfessed sins in their life. परंतु वो भूल जाते हैं कि उनके जीवन में कुछ अंगीकार न किए हुए ऐसे पाप है। That's why you should confess your sins. इसीलिए हमारे पापों का अंगीकार करना चाहिए, Read the Bible. वचन को पढ़ना चाहिए। Bible is enough to build you up, तो वचन जो है वो काफी है आपको उस बिल्ड करने के लिए। right? Go through the guidance of the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा का जो मार्गदर्शक है उससे आप होकर जाइए। Examine your prayer life. आपकी जो प्रार्थना का जो जीवन है उसका आप परीक्षण कीजिए। These are some basic things. ये जो है ये एक सीधी बातें है। If you break these routine basic things, अगर हम इस प्रतिदिन की इन बातों को अगर हम तोड़ते हैं, if you don't read your Bible, अगर हम वचन को नहीं पढ़ते, if you don't pray, अगर हम प्रार्थना नहीं करते, what will happen? तो क्या होगा? This world will overtake you.
ये जो संसार है ये हमें ओवरटेक करेगा। This flesh will overtake you. ये जो शरीर है ये हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। Devil will try his best that you will not open this Bible. जो शैतान है वो पूरी तौर पे प्रयास करेगा कि आप उस वचन को ना खोलो। I heard this that people means they say, as long as you open the Bible, जब तक आप उस वचन को खोले रहते हो it will always be open to you. ये near ये to you. ये आपके पास रहता है। But as long it is closed, जब तक वो बंद रहता है it will remain closed. तो वो बंद ही रहता है। Devil will try his best, the world will try his best, and your flesh to keep it closed. जो शैतान पूरी तौर पे प्रयास करता है, हमारा शरीर पूर्ण तौर पे प्रयास करता है कि वो उस बाइबल को हम बंद ही रखें। People have died. Up till now we have this Bible, but this means this Bible is with there are many martyrs who have died to keep this Bible. ये वचन को रखने के, इस बाइबल को रखने के लिए ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया है। It's a love letter from heaven. और वो जो है वो परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम को दिखाता है। God is daily eagerly waiting you that he will speak to you and you can learn from him. और परमेश्वर उस बात का वो राह देख रहा है कि आप उसके वचनों को खोले और परमेश्वर आपसे बात करे। But now Christians are busy in religion. परंतु जो मसीह लोग हैं वो उस धर्म के कामों में वो बिजी है। Means like Pharisee, they are just outwardly showing every Sunday they are coming only for communion, they are coming, right? फरीसियों के समान जिस प्रकार से वो सिर्फ बाहरी तौर पे वो दिखा रहे थे कि हम परमेश्वर के प्रति है, Right, only for religious means Christmas and all the church is full packed. और क्रिसमस के दिनों में और सब चर्चेस जो है वो फुल होते हैं। But daily, परंतु प्रतिदिन in regular services, और हर संडे की जो सर्विसेज होते हैं they उसमें are in the world. और वो संसार में होते They हैं are going watching movies, और वो मूवीज को देखते हैं, worldly songs. जो संसार के जो गाने हैं उनको सुनते हैं Right, they are forgetting that they have relationship. और वो भूल जाते हैं उस परमेश्वर के प्रति उस संबंध को। So I hope you will accept the relationship with God is trying to give you. मैं आशा रखता हूँ कि आप उस पर विश्वास करोगे जो परमेश्वर ने आपके साथ संबंध प्रस्थापित किया है। Thank you.